Oh, sorry. Yes. So good afternoon, everyone, to all the participants connected through online. So now I'm going to. I think I do not know how much of hands-on you have been discussed in this workshop. So I more or less mostly believe in doing some experiments. So now I will just give you an idea exactly how you can write simple programs, like what a Gemini can do, what Perplexity can do. If you want to do the same thing using in your own desktop laptop, how you can do that, right? We have several options. Like one of the option which I will be discussing here is called as Olama model. So Olama is basically a framework. How many of you have done some Olama, are using Olama framework earlier? Is there anyone? One. I think you have done, your friend has done. So very few. So now what Olama is if you are communicating with GPT or Perplexity or anything else, basically you are sending all your data to those servers, and it creates a lot of privacy issues. I'm not going to discuss too much about all those things. Again, those are, now we are going to offer full semester courses on those things. How exactly, or what are the problems with this AI? So far, we have shown, or we have given you all the good pictures of AI, but AI is also creating a lot of disturbances. So your private life is really in difficulty, right? So if you try to do, if you are trying to put or use the servers like GPT or something, you are paying a price. First thing. Second thing, you are uploading data to them, and that data can be used by anyway. Means that can be used to infer a lot of things, decide or do a lot of other things which are basically not, which you may not prefer it or you may not allow it. But once the data has been given to someone else, then you do not know. Sometimes even you do not know also what they are in the background, what they are doing. There are a lot of cases. I think in one of the slides I have, in one of the talk I presented, I cannot remember every scenario, but there were a lot of cases where people have, without people's consent, people have, like, one example, one simple example I would like to give is, with clocks, like all those health bands, fitness bands. So how difficult, or how, say, means even for uh, कंट्रीज, क्या कहा जाए उसको, प्रोटेक्शन और सुरक्षा, देश के सुरक्षा के लिए भी मुश्किल क्रिएट कर सकता है. हाउ? नाउ थिंक ऑफ द सोल्जर्स आर वियरिंग ऑल दोस फिटनेस बैंड, एंड इफ यू जस्ट क्रिएट अ हीट मैप कि कहाँ पे ज्यादा डेटा जनरेट हो रहा है फिटनेस बैंड का, you can easily identify where the camps are, army camps are, and people have identified, right, where the army camps are, where people are doing intense activity. तो इस तरह के भी सिनेरियो हैं. So privacy is a big issue. Anyway, I'm not going to talk too much about privacy, but I will obviously. So what is the other way? If you can make your local system, so let's have a look and then we will discuss it. This is basically Olama. You can see this web page. आपने गूगल में सर्च कर सकते हैं, simply write Olama, and you have this website olama.com, or you directly go to olama.com. So see, there is download Olama. It is available for all Mac OS, Linux, Windows. So it doesn't matter what your operating system is, you can always download it, right? If you are not able to download, or if you are not interested in download, then even you can go to Google Colab and you can do it there. I think Colab में भी कर सकते हैं. Let me show you that part also. तो अगर किसी के पास सिस्टम है, अगर करना चाहते हैं, तो you can download this Olama model.
ये मैंने अभी डाउनलोड किया, जस्ट ना अभी डाउनलोड किया मैंने. तो say this is the Ollama model which we have I have downloaded just now. I downloaded it. It's around 2 GB in size. ये था, इसको आप क्लिक करेंगे, डाउनलोड. ये अराउंड 2 GB का साइज है इसका. आप डाउनलोड कर सकते हैं. इफ यू हैव सिस्टम you can download. If you do not have system right now, you can just listen this and later on you can download it. So let us install it. इसमें 8 GB. So this system has got 8 GB of RAM. Okay. So it will be a bit slow, but to those who are connected online, I think the screen is share and they are able to get it. If you have 16 GB RAM, that's the ideal case. That's a better case, in fact, not ideal, but better case. Even if you have 8 GB RAM, it will be difficulty running it, but it will run. You have to find out the lower models, the model with lower parameters, lower number of parameters. Slowly. इसके अलावा एक और भी है जो आप यूज कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड एज LM Studio. LM Studio. So either you can go with Ollama or you can go with LM Studio. LM Studio is more graphical. Ollama is more command prompt based. So for researchers, normally people research etc. we prefer Ollama. Whereas if you are browsing or mostly you are trying to interact with the system, then LM Studio is a better option. You can go with LM Studio. इसको उस पर प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसको उस पर प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हैं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है. वो होने से आसान होता है एक्चुअली, इतना टाइम भी नहीं लगता. Oh. So there is no space. Then let me go through the Colab. Okay, so that was the best option कि अगर खुद के सिस्टम में आपका इंस्टॉल हो तो nothing better than that. Try to do that. अगर नहीं होता है तो दूसरा ऑप्शन है कि आप सेम चीज को कोलैब प्लेटफॉर्म पे, आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट कोलैब. सो आप गूगल कोलैब पे जाइए एंड सी हियर वी आर इंस्टॉलिंग. तो टू थिंग्स, एक तो फिजिकल
ओलामा फ्रेमवर्क है जो वो इंस्टॉल करेंगे पहले सिस्टम पे, और फिर आपको तो Google Colab is already having that Olama in the background, so it's there. So what we are installing here is just the Python extension for that. Olama is a software, you have just seen that. You install it, but installation means it will independently work. सोचिए, just have a look. इसको मैंने डाउनलोड किया, इसको अगर मैं इंस्टॉल करता हूँ लोकल सिस्टम पे, तो ये स्टैंड अलोन एप्लीकेशन की तरह काम करेगा. आप इससे जैसे जेमिनाई से या चैट जीपीटी से चैट करते हैं, वैसे आप इससे बात कर सकते हैं ओलामा से. ये आपको आज के मतलब जो मॉडल आप इस्तेमाल करेंगे इसमें, उस मॉडल में जो कुछ भी है, जैसे इसमें होगा क्या, once you install this, right, so it will install, it will create a framework. Now once that framework is created, then it will ask you to download certain models. Now you come again here, Olama, मॉडल्स. ये देखिए ओलामा में इतने मॉडल सपोर्टेड है, ये सारे सपोर्टेड है. नेमोट्रॉन, कीमी, ग्रेनाइट, डीपसीक वर्जन 4, मिस्ट्रल, लगुना, जेमा, क्वेन, all these models are supported there. Meaning what? Once you have that Olama framework is ready in your system, you can download any one of these models to your system. आप इनमें से किसी भी मॉडल को आप अपने सिस्टम में डाउनलोड कर सकते हैं. Once you will download it to your system, then you can interact with these models, right? इसमें इनफैक्ट जीपीटी वगैरह भी होगा नीचे. When LLM, Gemini, you can see Gemini, it's already there. So this you can download in your local system, and then you can interact without any internet connectivity. You can interact with that. So आप जो भी इसको डाउनलोड करने के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए, once you have downloaded और आप बाहर में हैं, आपको वहाँ नेट कनेक्टिविटी नहीं है, you can directly chat with them. The only restriction you will have is that this will interact or this will give answer which have been already, means which is already inbuilt there. That means on which data it was trained. जितने डेटा पे ये ट्रेंड हुआ था उस दिन तक, उतने तक का आंसर वो दे पाएगा. सो इफ यू आस्क दिस मॉडल, अगर आप पूछिए कि भागलपुर का करंट टेम्परेचर क्या है, तो वो नहीं बताएगा. लेकिन अगर आप पूछिएगा कि इंडिया के कुछ से पेट्रियट्स का नाम बताओ, या इंडिया का से फ्रीडम कब हुआ था, हाउ इंडिया फॉट देयर फ्रीडम और गॉट देयर फ्रीडम, व्हाट दे डिड इन 1950, what they did in 1946, so all these informations it will give. या आप फिजिक्स का क्वेश्चन पूछिए, केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछिए, उन सब का आंसर वो देगा. लेकिन आप करंट अफेयर्स पूछिएगा तो नहीं देगा. Why it will not be able to give? Because with that it has not never been trained. ये ट्रेंड नहीं है, इसलिए उसका आंसर नहीं देगा. So we have an option or we have a way to even resolve that also. इसलिए एजेंटिक एआई का आप लोगों ने नाम सुना होगा अभी. Have you heard of एजेंटिक एआई? So जो आप जेमिनाई से एक्सपेक्ट करते हैं ना, पूछते हैं कि अभी टेम्परेचर क्या है बता दो, अभी इतने बजे कितने से कौन सी ट्रेन आ सकती है यहाँ से यहाँ के लिए, तो इट्स डन थ्रू दैट एजेंटिक एआई. इट्स नॉट बेसिकली दिस जेमिनाई मॉडल आंसर नहीं दे रहा है उसका. So what this model does or what this framework does, you can create agents now. कि आप एक एजेंट्स बना के भेज दो, वो एजेंट वेब पेज को क्रॉल करेगा और जो इंफॉर्मेशन उसको मिलेगा वो लाके मॉडल को देगा कि भाई ये हमको मिला. देन मॉडल विल रिप्लाई टू यू. Normally all these models, what they are doing, taking your question. If it is, if you are asking a question, it takes your question. If it is there in the inbuilt system, fine. If not, then it will create an agent and send it. If you have asked a complex question, it may create two, three agents. Send them independently. आप इस चीज के बारे में पता करो. आपने अगर पूछा
कि आज का टेम्परेचर कैसा रहेगा और आज का ये ट्रेन शेड्यूल या फ्लाइट शेड्यूल ठीक है कि नहीं, अगर ठीक है तो यहाँ से यहाँ तक के लिए एक फ्लाइट बता दो मुझे। सो इट में सेंड 2-3 एजेंट्स। एक एजेंट जाओ भाई टेम्परेचर पता करो, दूसरा एजेंट जाओ भाई पता करो कि आज कौन कौन सी फ्लाइट्स है इस जगह के लिए, उसमें क्या क्या फेयर्स है, क्या है, कैसा है। So it may create agents like that. So agents will go independently. They will crawl the web pages, find out the information, come back, and again give it, return it back to the major model. The model will again take all those things, create a concrete answer according to your question, return it back to you. Right? But normal जो ओलामा हम local system में create करेंगे, it will not have that agentic framework inbuilt. But you can create that agentic framework. Right? There are options to create that agentic framework also in your local Olama model, so that it will be able to answer just like the normal chatbots what you see in the reality. So आप MCX इस तरह के बहुत सारे tools हैं जिसके थ्रू आप agents create कर सकते हैं. So let us not go to agent right now. Let us concentrate कि ठीक है जो इनबिल्ट आंसर है कम से कम उतने का हमको आंसर दे दे. इफ यू राइट अ पैराग्राफ एंड आस्क कि करेक्ट कर दो इसको, इंग्लिश या टाइपोस फाइंड आउट कर दो, उतना काम सब तो आसानी से करेगा वो. बाकी के लिए तो गूगल आप कर ही सकते हैं मोबाइल से. सो इफ यू वांट कि आई हैव रिटन अ पैराग्राफ और आई वांट टू क्रिएट अ नोट एंड सो विथ लोकल सिस्टम यू कैन डू ऑल दोस थिंग्स. राइट? तो वो इंडिपेंडेंटली कर रहा है. अभी हम क्या करेंगे उसके बाद, अगर पाइथन में कोड लिखना हो तो हम ये पाइथन में उसका एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे. सो विल गिव pip install Olama. pip install Olama इज समथिंग डिफरेंट, और जो हमने डाउनलोड किया है वो डिफरेंट है. वो सॉफ्टवेयर है, पूरा फ्रेमवर्क है. pip install Olama is just to interact with that existing downloaded Olama in your Python through your Python programs. ऐसे समझिए कि आपके पास एक सॉफ्टवेयर है, आप डायरेक्टली इसको इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन आप एक प्रोग्राम के थ्रू, एक दूसरे इंसान के थ्रू या दूसरे एजेंट के थ्रू इसको यूज करना चाहते हैं, तो यू हैव टू क्रिएट एन एक्सटेंशन. राइट? सो दैट्स द इंस्टॉलेशन वी आर डूइंग हियर. सो pip install Olama and let's install this. So it's working. Again, it will take time. Now in this example what I have done is कि फर्स्ट हम लोग एक चेक करेंगे कि ओलामा ये ठीक से इंस्टॉल हो गया है, क्योंकि इट्स इन अ रिमोट सर्वर. सो वेदर वी आर एबल टू कनेक्ट विथ इट और नॉट. सो विल ट्राई टू जस्ट सी कि वेदर वी आर एबल टू डू इट और नॉट. सो सी the Olama package extension and Python is installed. Now I am going to start the Olama server. अगर ये लोकल सिस्टम में होता तो कमांड होता है start Olama. अगर वो इंस्टॉलेशन हो गया होता सक्सेसफुली तो we could have given a command start Olama. We will start cmd. यहां लिखेंगे start Olama. सिंस अभी तो है नहीं Olama, तो अभी ऐसे कि ये काम नहीं करेगा, अभी तो ये काम करेगा नहीं. लेकिन अगर इंस्टॉल हो जाता तो दिस इज व्हाट वी विल डू, स्टार्ट Olama. अगर ये स्टार्ट हो गया तो वी विल देन वी इशू लिस्ट Olama. If we give list Olama, so it will give you whatever models you have downloaded, and you can download n number of models. मैंने अभी मॉडल्स दिखाए ना यहाँ पे, कि इतने सारे मॉडल्स हैं. यू कैन डाउनलोड n नंबर ऑफ मॉडल्स. आप जितना चाहें उतना मॉडल डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है, इतने सारे मॉडल्स हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं. इसमें से जो आपको मन करता है आप डाउनलोड कर सकते हैं. इट्स अप टू यू. सो इफ यू इशू दिस कमांड Olama list, सॉरी लिस्ट Olama नहीं, Olama list, मैंने गलत लिखा. Olama list. Olama list will give you the list of all the models which you have downloaded in your local system. Olama list will give you, अगर आपने कोई मॉडल अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो ये ब्लैंक दिखाएगा. राइट? ब्लैंक है. Then you will write basically Olama pool और एक मॉडल का नाम.
नहीं पता हो तो आप यहाँ चले जाइए, देख लीजिए इसमें से मॉडल का नाम अगर आपको पता है। जैसे मान लीजिए मैं एक मॉडल ये कर रहा हूँ लामा 3.2 से, ठीक है। अगर कोई कर रहे हैं, कितना जीबी का दिखा रहा है लामा 3.2? लामा 3.2 नहीं दे रहा। DeepSeek, ठीक है, एक क्वेन ले लीजिए। You can take Qwen 3.5. जैसे मान लीजिए 3.5 6.6 जीबी, तो अगर किसी का 8 जीबी का अगर कंप्यूटर है, लैपटॉप, सॉरी 8 जीबी रैम है, तो डोंट डाउनलोड इट, राइट। नॉर्मली द थंब ऑफ रूल इज कि आपका आधा स्पेस कम से कम खाली होना चाहिए आपके रैम का। सो इफ योर रैम इज ऑफ 8 जीबी, तो डोंट ट्राई टू डाउनलोड अ मॉडल विच इज मोर देन 4 जीबी, right? Otherwise your processes or your system will not able to run, so then you avoid it. इसमें एक चीज और देखिए, यहाँ पे आप देखिए तो ये जो क्वेन आता है साइज यहाँ से exactly, ये देखिए क्वेन 3.5 लेटेस्ट, इसका साइज है 6.6 जीबी। क्वेन 3.5 8 बिलियन 1 जीबी, 2 बिलियन 2.7 जीबी, 4 बिलियन 3.4 जीबी, 9 बिलियन 6.6 जीबी, 27 बिलियन 17 जीबी, 35 billion parameter 24 GB, then 122 billion parameters 81 GB, right? So what it means, as you were talking about, no, कि सर नेटवर्क स्ट्रक्चर्स अगर बढ़ाएंगे, राइट, सो वो कैसे इफेक्ट करेगा? तो देखिए पहला कि यहाँ पे 122 बिलियन पैरामीटर्स है, मतलब है द नंबर ऑफ वेट्स इन दैट न्यूरल नेटवर्क इज 122 बिलियंस, right? 122 billion weights are there, weights and biases in that network model. और इसीलिए इसका साइज भी देखिए, इट्स अराउंड 81 GB, and this 81 GB is going to run in your RAM. It's not only going to stay on disk. Remember, this is going to run in your RAM, because ये मॉडल पूरी तरह से RAM में लोड होगा तभी जाके आपको आंसर देगा, राइट? सो यू थिंक ऑफ कि कितना रिक्वायरमेंट है हमको। तो until unless you have 128 GB of RAM, you are not able to go get it. इसके अलावा ये जो मॉडल्स आते हैं, इनको आप लो रिजोल्यूशन में भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे इमेज के रिजोल्यूशन होते हैं ना, ऐसे ही मॉडल्स के भी रिजोल्यूशन होते हैं, ठीक है। नॉर्मली आप सोचिए कि इफ यू हैव say 8 billion or say 1 billion parameters, see here, I think it was 2 billion parameter, 2 billion parameters. Now 2 billion parameter, every parameter is basically a weight, मतलब एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, एक फ्रैक्शनल वैल्यू है। एक फ्रैक्शनल वैल्यू स्टोर करने के लिए कम से कम कंप्यूटर में 4 बाइट की जरूरत पड़ेगी। मल्टीप्लाई करिए, इतना इंटू 4, कितना साइज आएगा। अभी अगर मैं बोलूं कि ठीक है, मैं 4 बाइट के फ्लोटिंग पॉइंट में रिप्रेजेंट नहीं करके उसको 2 बाइट के फ्लोटिंग पॉइंट में रिप्रेजेंट करूंगा, तो वो
क्या होगा उसका, तो जैसे इमेज को हम 10 GB का इमेज नहीं लेंगे सर, हम 1 GB का इमेज नहीं लेंगे या 1 MB का इमेज नहीं लेंगे, हमको रिस्ट्रिक्शन है ये फॉर्म अपलोड करते समय 200 KB में ही डालना है इसको, तो बहुत बार रेजोल्यूशन डाउन करते हैं ना। सिमिलरली वी कैन इवन डाउनलोड द रेजोल्यूशंस कि पैरामीटर उतना रहे बट पैरामीटर्स के फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन कंडेंस कर दे। तो नाउ यू कैन ट्राई, ये मॉडल ट्राई कर सकते हैं आप, इसको कॉपी करके ट्राई कर सकते हैं। दिस इज 1 GB ओनली, दिस इज पेन 3.5 but this is 8 billion and just 1 GB of size. So you see here size कम है इसका ना। So this is what you can do. You can go to these websites and you can find out कोई भी मॉडल जैसे जेमा या DeepSeek से, if we are going for DeepSeek, so DeepSeek मॉडल का आप देखिए, साइज इसके अलग साइजेज में नहीं अवेलेबल है, साइज 1.6 ट्रिलियन नहीं, इसका नहीं, अलग साइजेज में अवेलेबल नहीं है। ये सिर्फ देखिए 1.6 ट्रिलियन डेटा है इसका, 1.6 ट्रिलियन डेटा पैरामीटर्स। JEMA is what normally can be used. JEMA is basically predecessor of Gemini जो हम लोग देखते हैं ना, ये उसका predecessor है जो Gemini आज देखते हैं। So JEMA is a predecessor of that normally. So you see the sizes here. So this you can download. Have you downloaded? Right. Those who are having, they can try. So if you try Olama pool and then you can give the Quen, Llama जो भी है इसके छोटे वाले. Once it will be done, that means the model is ready. And if you ask a question, कि Llama, give me answer of what is the color of sky, when does, and similar questions, physics के law, chemistry के law वगैरह, it will give you answer. So you can start interacting with that. Now what I am going to do, I am going to give you a demo which we did last year. So I think Llama server successfully launched. Now see here, we are pulling the model. So we are pulling Llama 3 model. Just right जो मैंने यहाँ पे लिखा था ना, Llama pull Llama 3. That same thing we are doing here. Llama pull Llama 3. Llama 3.2 say if I take not found. That means they have to install. That's the problem in current generation of programming. हर 2 महीने 4 महीने में ये बदल देता है सब. This we have already done. ठीक है. Why it's not running? Message file directory. Llama host. Llama is installed here.
This person. Hmm? Hmm. Hmm. Thomas Wilder. Might be this line keep install Lama. Hmm. इसको कनेक्ट नहीं कर सकते हैं ना लैपटॉप को? हम्म? ये डायरेक्टली उससे कनेक्ट नहीं होगा? हाँ? वो मैं ये दे देता हूँ। कोई HDMI केबल वगैरह है क्या उसमें, या डायरेक्ट इससे ये प्रोजेक्ट होगा? हाँ? लैपटॉप से आप ज्वाइन कीजिए और स्क्रीन कर सकते हैं। क्या? तो लैपटॉप से स्क्रीन प्रेजेंट कीजिए। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ। गूगल में क्या ये इसको तो कनेक्ट करना होगा ना समहाउ। मैं ये वाला प्रेजेंटेशन आपको देता हूँ। हाँ तो यहाँ लोगों को कैसे मिलेगा? सबको सब मीट से ही जाएंगे? हाँ सर। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि इसमें कनेक्ट नहीं हो जाएगा डायरेक्टली? नहीं सर। अच्छा सची इसमें तो नहीं होगा। आप ज्वाइन करके यहाँ ऐसे से क्यों नहीं होगा? उसका कोई तो HDMI केबल वगैरह होगा या नहीं है? मिररिंग तो नहीं हो रहा है ये। डालना पड़ेगा लैपटॉप से डायरेक्ट हो सकता है ना, कुछ वायर वायर तो होगा कनेक्ट करने के लिए। जब रीडिंग का ऑप्शन करेंगे तो नहीं है। शेयर का ऑप्शन नहीं होगा, ये एक्चुअली बाहर निकल गया है। जो सर्वर है सर हमारा अच्छा अच्छा। तो सर लिखा होगा ना सर, आप इसको शेयर कर सकते हैं। आपकी इन्विटेशन गया होगा सर कॉलेज का। फिट तो जो सोचा था वो नहीं हो पा रहा ना। हाँ वही करेंगे, कम से कम ये वाला भी हो जाता है ना। नॉट तो चाहिए सर। जो 5 सर आपके पेन ड्राइव होगा उसे तो कर सकते हैं।
Okay, so let is it's not working somehow, but that way you can continue. Somehow the collab is not working and we are not able to establish on this one. Let us move on to this theoretical part itself. So uh, let me explain exactly what we can do. So LLMs, that's what I was just trying to show you. We can install the local model, and most of the time we prefer to having local model because of the privacy issues and other things. Things will be in under our control. Like the government is totally focusing on that. We should not give our data to outside world, and for that we need to host the system inside our country. And if you want to develop your model, you can easily do it by hosting that. So two three things you need to do, like whatever we all of, I think this you already know, whatever we interact with this sort of LLM models are called as prompt. So we write a prompt to interact with these LLM models. So while we are writing prompt, now the prompt can be how big, what is the size of the prompt. So the prompts are no doubt consists of certain tokens, certain words, and each word is token. So every uh, this LLM has a capability.
कि how long tokens are, what is the size of the tokens they can accept, right? How many tokens they can accept at a time. So if you try on a free tier, जैसे अगर मैं अभी right now if you try in this Google AI mode, if you give something, if you just type something which is slightly bigger, it will say that no, the limit has crossed, and it will truncate that. But if you have a paid version and if you go to Gemini, probably you can put much bigger prompts. So if you move from one LLM to another LLM, the number of strings and number of tokens you are putting on those prompts will vary. So that's the capability you need to find out ki what is the tokenization you are doing, what is the prompt you are using, or what sort of how many prompt or how many things you can put there. Now, how it can help you? So it can help you in in-field advisory, pathogen intelligence. That means whether there are any say outbreaks on something, some infections, etc. Supply optimization, policy integration. So now you might have seen ads by Google or by Chat GPT कि मेरी एक चाय की दुकान है, क्या एक सामने एक दुकान खुल रही है, so what should I do? So it used to say कि आप एक चाय का ठेला लगा लो and so on. So have you seen that ad? नहीं देखे हो? कोई देखा है? चैट जीपीटी से एक ऐड आता था अभी टीवी में कि चैट जीपीटी से एक आदमी पूछता है जिसका ऑलरेडी एक किराने की छोटी दुकान है, तो इज आस्किंग कि सामने एक बड़ा सुपरमार्केट खुल रहा है, सो सजेस्ट मी कि व्हाट टू डू. तो चैट जीपीटी यूज्ड टू सजेस्ट कि एक चाय का ठेला लगा लो, जो सामने मॉल में आएंगे वो भी चाय पीने आएंगे, एंड इफ यू आस्क आई कैन गिव यू सम मोर सजेशंस, राइट? सो दैट सॉर्ट ऑफ एडवाइजरी, सप्लाई चेन ऑर्गेनाइजेशंस, पॉलिसी इंटीग्रेशन एंड सो ऑन. सो अभी दिन भर इसका जीपीटी का ऐड आता है, आईपीएल वगैरह के समय में देखोगे. सो लॉट ऑफ थिंग्स. Then these are basically the prompts we have written. जैसे अगर मान लो कि हम ऑटोनोमस ड्रोन डिस्पैच एंड स्काउट करना चाहते हैं, so we are using Gemini. So see here what in the prompts what we are writing. This is what I just tried to show you कि exactly in practice कि कैसे ये काम करता है. But somehow things didn't work out in practical scenario right now here. So role is system. Instruction, you are an automated crop pathology triage agent routing data between computer vision and you must analyze your sensor packet structurally. If confidence metrics will fall below threshold, generate an edge exclusion JSON packet to trigger an autonomous drone to fly to the precise GPS coordinate for microphotography. Right. So this instruction we are giving to those LLMs. Input schema, so field ID, anomaly detected, confidence score, GPS, ion, and so on. And guardrails, basically what is guardrail is this Gemini, GPT, whatever. They sometimes can give you data which never exists. But I do not know whether how many interactions you have done and whether you have ever faced this sort of scenario or not. लेकिन जैसे मान लो कि while writing some paper I ask Gemini कि भाई मुझे इस एरिया में या इस डेटा सेट पे कुछ लोगों ने अगर काम किया है तो वो मुझे निकाल के दो. So it can sometimes it even once it has given some paper ID or name of the authors, paper ID, journal, everything. I was also listed as one of the authors which I have never written. But it suggested, it created a paper, complete bibliography, complete reference, and it was looking great. So it created all the names, the title for a journal article, journal names, and everything. Since I know that this paper has not been authored by me, so I immediately came to know that the LLM has basically the hallucinated. इसको जैसे एक सपना आता है ना, सो वैसा कि अपने से इसको लगा ये हो सकता है, ये आदमी इस एरिया में काम करता है, तो हो सकता है ऐसा भी एक पेपर लिखा हो कभी, which never exists. This problem is called as hallucination. If you look into the history,
or basically of these LLMs, etc. Chat GPT, not Chat GPT, all these Alexa, Siri. I think 3 years back, 11-year-old girl asked Alexa, give me a challenge. Alexa told, jump from the first floor. And she lost the life. Right? So that can happen. If you ask Alexa nowadays or anyone, Alexa, Gemini, GPT, whatever name you give, Siri, किसी को भी अगर पूछ दो कि मुझे बम बनाना सिखाओ, immediately first time they will say कि no, this is unethical, you can't do that. अगर बार बार पूछोगे तो then they will immediately call to the police. Right? If you ask for कि give me or suggest me various ways of suicide, immediately you post that question, all the agents nowadays, they will call the counselor or to police or to someone else, like health organizations like that. But incident has already occurred like that. I think 7-8 years back, a lady asked Alexa, I want to do suicide. Alexa suggested, okay, these are the various ways of doing suicide. Right? So, but now then people have come to know, and he was asking a question, ki sir, future kya hai? So that's the problem. It's not 100% true. It can give you certain answer, but it doesn't have general answers. अगर तुम्हारा दोस्त चलते फिरते तुमसे क्वेश्चन कर दे कि आई वांट टू डू सुसाइड, तुम कभी ये नहीं बोलोगे कि यहाँ जहर मिलता है जाके खरीद लो खा लो. तो but what Gemini and Google say earlier they used to do, they can use they because they were machine. So वो उसको एक क्वेश्चन समझते थे और उसका आंसर दे देते थे. So that's what the guardrails are. You see here the last line is guardrails. इस स्लाइड्स में देखिए नीचे की तरफ लिखा हुआ है guardrails. So what guardrail is? We are giving a boundary कि भाई इस तरह का आंसर नहीं देना. ठीक है? We are fencing it. LLM को एक फेंस कर रहे हैं कि देखो ऐसा आंसर नहीं देना. अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस अगर इस चीज का कम है मत दो. अगर इसका कॉन्फिडेंस इससे ज्यादा है या कम है तभी दो, नहीं दो. इस तरह के अगर केमिकल के बारे में नहीं जानकारी हो तो नहीं दो. सो वी हैव गिवन दैट इंस्ट्रक्शन एज ए गार्ड रेल कि अगर वो नहीं है तो मत दो. अदरवाइज क्या होगा, तुम सोचो कि तुम किसी चीज के लिए दवा मांग रहे हो और वो अंदाजे पे कुछ भी बोल दिया हेलुसिनेट करके. And now we are moving from artificial intelligence to artificial general intelligence. उसको कॉमन सेंस जो बोलते हैं ना कॉमन सेंस लोगों में बहुत अनकॉमन होती है. तो लोगों में तो अनकॉमन होती है, जीपीटीज में या जो हमारे एलएलएम से उनमें है ही नहीं, जीरो है. सो वी वांट टू पुट सर्टेन कॉमन सेंस इनटू दैट कि भाई इस तरह के सवालों के जवाब दीजिए, इस तरह के सवालों के जवाब नहीं दीजिए. Right, so this is a prompt. So if we give this prompt, you can just copy it and you put this prompt to anything like GPT or Gemini or this sort of nature, they will give you the answer. And we can basically we are automating it. क्या हमारा एक ड्रोन है, ड्रोन के अंदर में जो इंस्ट्रक्शन है उनको जो भेजना है, so my GPT will be sitting there and say if it feels कि time to time if there is some wrong sensor data or the data is sensor data is not good enough, then it will instruct कि ठीक है इस आप जाओ और ये करो. Then similarly you see chemical compliance advisory layer if you want to create a prompt for that. So you can create a prompt like this. Say you are a rigid legal and safety guardrail engine validating field agronomy prescription and this. Validation rules are this and rejection behavior. If any constant, if any one of the condition is violated, because this is a chemical thing, even if any one of the conditions are not fulfilled or violated, you reject this. Never generate that suggestion. Right? So this all has to be given to prompts. So अभी जैसे क्या है ना कि ये आने के बाद कि उनसे सही तरह से आंसर कैसे निकलवा ले. एक एलएलएम से
how we can find out or how we can instruct LLM to do the task in a correct way. So that is called as a prompt. Prompting. We are prompting them. So how to write good prompts? So now people are learning. Most of the industry people are now learning, and they are mastering. YouTube में भी देखोगे तो दिन भर ऐड आते रहता है, prompt engineering. So this is what a prompt is. Basically these are prompts. ये जो मैं दिखा रहा हूँ ब्लैक में जितना भी दिख रहा है ये पूरा ही prompt है. This whole thing is prompt. अगर मैं कोड दिखा पाता, एनीवे कोड तो था जैसे मैं उस कोड को दिखा ही सकता था, रन भले ही नहीं करे. ये आप देखिए यहाँ हम लोगों ने, ये तो मैं जस्ट चेक कर रहा था कि प्रॉम्प्ट कैसे काम करेगा. इधर मैं प्रॉम्प्ट क्रिएट किया हूँ. देखिए ये पूरा कोड जो है, दिस इज व्हाट आई हैड रिटन फॉर क्रिएटिंग द प्रॉम्प्ट. कितना लंबा है, देखने में बड़ा है, बट दिस इज व्हाट आई क्रिएटेड फॉर क्रिएटिंग प्रॉम्प्ट फॉर मी. राइट. इस काम में क्या करते हैं वो मैं बाद में बताऊंगा आपको, बट दिस वे वी कैन क्रिएट. So this is a prompt, and if this prompt is given to this Ollama, so even if you copy this, copy भी नहीं हो रहा. If we copy it, if we copy it and put it to LLMs, let me copy it. Control C. See. Okay, this is not working. ये इसको, since this is not, I think Gemini खुलता है यहाँ. हाँ. So say this has created, and this field can be, basically this will be put to all those scenarios. इसमें दूसरा होगा, ये क्या था कि हम advisory layer natural like look at this. देखता हूँ. Actually, we have to give this data. Those files we need to supply. From those files, it will answer. That's why it's not working. Planning. So this is the anatomy जो मैं दिखा रहा था. उसका anatomy कुछ ऐसा है. Role definition, context injection, 4 task execution, formatting, constraint layer. So while creating a good prompt, this is what we are looking into.
कि क्या रोल डेफिनेशन है उसका, क्या कॉन्टेक्स्ट इंजेक्शन है, कोड टास्क एग्जीक्यूशन क्या है, फॉर्मेटिंग कॉन्स्टेंट्स. दिस इज व्हाट in that example what we have created. So this is one fertilizer plant. Again, if you are going to do some telemetry input data, input क्या है, आउटपुट किस तरह से चाहिए, ऑडियंस क्या ये है, रेगुलेटरी सेफ्टी कंप्लायंसेस क्या है, and so on. So you can, if you are going to write prompts for pest advisory, for agronomy tasks, you can follow this sort of structures. Cloud is what we discussed, whether we should go for cloud or whether we should go for on-premise development. Hallucination, reliability, biasness, fairness. Do you understand what is bias and what is fair? नहीं, bias क्या है? Bias is not knowledge. Do you understand bias by model or bias in society? हाँ, bias towards something. उसका मतलब क्या हुआ? कि किसी को फेवर करना, favoring someone. So AI models, do you think that AI models can do the bias? और bias हो सकते हैं? AI model can be biased? No? Yes, sir. Yes, sir. कैसे? AI models are, in fact, अब तक जितने AI models इंस्टॉल हुए हैं प्रैक्टिस में है, काफी बायस्ड ही है. एंड फॉर एग्जांपल, जो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल दिखता है, इन 2018 माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉल्ड ए मॉडल फॉर resume screening. ठीक है, it was Microsoft or Amazon, not Microsoft, Amazon developed a system for scrutinizing the biodata. जो हायरिंग करता है ना, तो बायोडाटा स्क्रूटिनी करने के लिए एक सिस्टम इंप्लीमेंट किया. कुछ दिनों के बाद उनको समझ में आया कि किसी भी लड़की का बायोडाटा शॉर्टलिस्टेड ही नहीं हो रहा है. Right? And that was a fact. The AI model never shortlisted a girl. The AI model was always shortlisting the boy. So it was biased towards the male candidate. And it was totally unfavorable to female candidates. The reason was कि जो Amazon को टेस्ट करने के लिए, to train that model, the data which was taken was historical data. और उस हिस्टोरिकल डेटा में मैक्सिमम ही मेल कैंडिडेट्स थे. सो मॉडल को यही समझ में आया कि सिर्फ मेल ही ये काम कर सकते हैं. एंड हेंस द मॉडल वाज ऑलवेज प्रिफरिंग द मेल कैंडिडेट्स. विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स दे रिमूव्ड दैट सिस्टम फ्रॉम प्रैक्टिस. इट्स अ रियल सिस्टम. 2018 इट ऑकर्ड. अभी भी है अमेज़न में या दूसरी जगह भी है कि ये तो था कि मेल वर्सेस फीमेल. अभी मान लीजिए कि एक गोरा मेल और एक थोड़ा सांवला मेल, ठीक है, मेल, दोनों ही मेल है, एक गोरा है और एक सांवला है, डार्क कंप्लेक्शन. इनको आप एक अमेज़न का ही डेवलप किया हुआ था वो भी, उसको आप ये मेल वर्सेस फीमेल रिकॉग्निशन सिस्टम में दीजिए, तो दोनों ही केस में बोलेगा कि ये मेल है और कॉन्फिडेंस विल बी अराउंड 96-97%. अब आप एक फीमेल लीजिए, दो फीमेल इनफैक्ट, एक डार्कर स्किन फीमेल और एक लाइटर स्किन फीमेल. यू गिव इट टू दैट इमेज रिकॉग्निशन और फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर. वो जो लाइटर स्किन वाली जो फीमेल है उसको 97, 98, 99% एक्यूरेसी से बोलेगा कि ये फीमेल है. लेकिन जो डार्कर स्किन की है उसको 50, 60 या कभी कभी बोलेगा मेल है. That means the model has learned, in fact, associated the color information with gender information. Right?
The color information is also associated with gender. मतलब उस मॉडल को ये पता है कि फीमेल मीन्स मोस्टली दे आर लाइटर, darker means mostly they are males, right? So this is bias. This is a bias which is there in the AI generated say AI models, और ये हर तरह के discriminative models में भी है, generative models में भी है. And there are so many cases of biases. So we need to have systems which are fairer. The systems need to be fairer, means they should not differentiate between these two. और ये मैक्सिमम, लेकिन अभी तक जैसे बताया ना, इसके अलावा आपका लीगल फ्रेमवर्क का एक सिस्टम, यूएस का कौन सा डिस्ट्रिक्ट था मैं भूल रहा हूँ, उधर उन्होंने एक लीगल केस इंप्लीमेंट किया कॉम्पास करके शायद, ठीक है. सो देयर फॉर द सेम क्राइम, जो वाइट था उसको सिर्फ थोड़ा फाइन या डांट डपट के छोड़ देता था, लेकिन जो ब्लैक्स थे उनको अच्छा खासा जेल होता था फॉर द सेम क्राइम. और ये सिस्टम हमेशा प्रिडिक्ट करता था कि ब्लैक लोग जो है वो फिर से क्राइम करेंगे, इसलिए उनके ऊपर एक हेस्टी फाइन लगा और इसको हमेशा जेल में रखा. सो दिस वाज बेसिकली, जबकि इन रियलिटी इट वाज नॉट दिस ट्रू, नॉट द केस. सो दिस इज व्हाट द क्लासिकल केसेस ऑफ बायसनेस. अभी जो बोले ना कि हम लोग बहुत प्रोग्रेस कर लिए, ऐसा नहीं है. वी हैव क्रिएटेड सो मेनी इनफैक्ट इश्यूज फॉर अस, उसको अभी रिजॉल्व करना है. और इसको समझने में भी बहुत टाइम लगता है कि आपने डेवलप किया, आपको एक समय के बाद ही पता चलेगा कि एक ही टाइप का एक रिजल्ट दे रहा है, एक ग्रुप को फेवर कर रहा है. सो वी नीड टू हैव फेयरनेस. अभी फेयरनेस कैसे मेजर करेंगे, ये अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन है कि कैसे बोलेंगे कि ये फेयर है. भाई इंजीनियरिंग में देखिए, हम लोगों को वी वांट नंबर्स, वी वांट अ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, नो. तो फेयरनेस मैट्रिक्स भी है, अभी बहुत सारे फेयरनेस मैट्रिक्स हैं ऑलरेडी, बट स्टिल अ गुड मैट्रिक्स हैज टू बी डेवलप्ड. एक बुक है, नाम मैं भूल रहा हूँ, फेयरनेस एंड बायसनेस के ऊपर, काफी अच्छा, श्रे, आई थिंक सम श्रे कोई क्या है, उसका काफी अच्छा बुक है, फेयरनेस एंड बायस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम. एक्सीलेंट बुक. सो यू विल सी अ लॉट ऑफ मैट्रिसेस, हाउ टू मेजर ऑल दोस थिंग्स, कैसे इसको रिजॉल्व करते हैं. सो नॉर्मली टू रिजॉल्व हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा में बहुत बार ये सारे प्रॉब्लम्स में मोस्टली जो है वो, दिस इज बिकॉज ऑफ द डेटा, बिकॉज Amazon मेड मिस्टेक्स, बिकॉज Amazon फाउंड मोस्ट ऑफ द डेटा अर्लियर एम्प्लॉइज वेयर मेल, सो इट डिसाइडेड कि मेल्स आर द ओनली एलिजिबल कैंडिडेट. The data which was trained for this face recognition system, they found that most of the females are of lighter skins. So it associated by default कि ये female skin अगर darker skin, sorry, अगर female है तो वो सिर्फ और सिर्फ lighter skin की ही होगी, darker skin होने के chances उसमें कम है. So this is what of the data. So we can do data in processing, data processing, pre-processing. We can create some extra samples. कुछ samples create कर सकते हैं जो existing में नहीं है, originally नहीं है. We can pre-process it. We can balance the data so that the model can get sufficient amount of data to learn both the features or more all the classes for all. So equal distributions more or less it can get. We need to have explainability. जैसे जो केस बताया कि वो कलर को जेंडर के साथ एसोसिएट कर दिया. Both are independent variables. Color एक अलग चीज है, gender is a different story. But the model when it learned that these two are associated. इनके बीच high correlation है because of the data it got. So और हमारे पास जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि deep learning, as we have moved to deep learning part, we have basically moved away from the explainability कि ये क्यों हो रहा है ये काम. अब क्यों का आंसर नहीं है तो getting this sort of all these confusions are really becoming difficult. और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे मैं सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, that itself we will be
you can perform and you can test it if needed. मैं आपको बोलूं अगर कि आप कुछ डॉग्स एंड कैट्स के इमेजेस कलेक्ट करिए, तो टेक अ मंथ, you collect some images of dogs and cats, you make a model. तो मैं आपको गारंटी देके बोल रहा हूं कि आपका जो मॉडल बनेगा एक अच्छा नॉर्मल बेसिक मॉडल, वो कभी भी डॉग्स एंड कैट्स को नहीं देखेगा, वो सिर्फ लाइट्स को देखेगा और अंधेरा शैडो को देखेगा और बता देगा कि ये डॉग है या कैट है। नहीं विश्वास हो रहा है? आप जितने भी डॉग्स के इमेज लेंगे मोस्टली लाइट्स में होंगे, डॉग्स इधर उधर रास्ते पे घूम रहे होंगे, ज्यादातर डॉग्स। कैट्स की जब भी आप देखेंगे तो वो रास्ते पे घूमते हुए नहीं दिखेंगी, वो कहीं ना कहीं कोने में इधर उधर बैठी होंगी, रूम में अंदर कोने में। सो उनके इमेजेस मोस्टली डार्कर एरिया में होंगे, डॉग्स के इमेजेस मोस्टली लाइटर मतलब काफी लाइट वाले एरिया में होंगे। मॉडल को बस यही समझना है कि भाई लाइट है कि डार्क है, अगर लाइट है तो डॉग है, डार्क है तो कैट है। वो कभी कैट और डॉग को देखेगा नहीं, फिर भी वो 90-95% एक्यूरेसी बता देगा, आएगा। दिस इज अ फैक्ट, यू ट्राई इट एंड यू विल फाइंड आउट कि हाँ सर ये हो रहा है। मॉडल इज, यू आर जस्ट ऑप्टिमाइजिंग कि हमारा एरर कम होना चाहिए। यू हैव नेवर ऑप्टिमाइज कि डॉग और कैट को सही सही आइडेंटिफाई करना है। तो अभी जो न्यूरल नेटवर्क में मैंने बताया कि ऑप्टिमाइज करेंगे हम, एरर को जीरो करेंगे। We were just trying to optimize error, that means minimize the error, that's all. We never thought of कि हमारा क्लास का प्रेडिक्शन सही होना चाहिए। This has also occurred. इस तरह के सिनेरियो भी है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है जहां देखिएगा कि हस्की और उल्फ के बीच में एक्सपेरिमेंट किया गया। जो मॉडल था वो 100% ऑलमोस्ट दे रहा था, लेकिन वो क्या कर रहा था, सिर्फ बर्फ को देख रहा था। अगर बर्फ है तो ये सारे उल्फ है, अगर बर्फ नहीं है तो ये हस्की है। अभी आप सोचिए कि एक ऑटोमेटेड, देखिए ये हो सकता है कि सर इससे क्या फर्क पड़ता है, बताओ। थिंक ऑफ ऑटोमेटेड कार विच इज अ रियलिटी नाउ, इट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन सेवरल एरियाज, सेवरल कंट्री। सो एक ऑटोमेटेड कार, वो अगर इस तरह से डिसीजन लेने लगे, उसको अगर प्रॉपर चीजों की पता ना हो, इट कैन मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स। इसके अलावा जो थर्ड इशूज अभी बहुत बड़ी इशू है, जो है आपके एडवर्सरियल एग्जांपल्स, जिसको हम लोग बोलते हैं फूल बनाना, मॉडल्स को बेवकूफ बनाना। एक मॉडल है जो 100% एक्यूरेटी या 95% या 96% एक्यूरेसी से रिजल्ट देता है, सब ठीक है, उसका बायस भी नहीं है, फेयर भी है, सब ठीक है, उसको बेवकूफ बनाना है। बेवकूफ कैसे बना सकते हैं? तो अभी थोड़ी देर पहले जो मैं बताया था, देखिए बेवकूफ बनाने के लिए एक मॉडल को हमको क्या करना है। इफ यू रिकॉल, in the morning I told कि मान लीजिए हमने इस तरह का एक सरफेस बनाया है, एक डीप लर्निंग मॉडल इंप्लीमेंट किया, इसके अंदर मान लीजिए कि मेरे कैट्स हैं और इसके अंदर मेरे डॉग्स हैं। अब हम एक कैट का इमेज दे रहे हैं, ठीक है, और चाहते हैं कि मॉडल उसको डॉग बताए। देखिए इशू समझिए, हमने एक मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन किया जो कैट्स को और डॉग्स को अलग कर देगा, राइट, और वो काफी अच्छा है। मान लेते हैं हम फिलहाल के 100% है एकदम, 98-99% तो ऐसे भी आ जाएगा, हम 100% ही मान लेते हैं। तो अमूमन आप उसको एक कैट का इमेज दीजिएगा, वो बोलेगा ये कैट है, डॉग दिखाइएगा बोलेगा डॉग है, फटाफट। Now what I want, I will show him the image of cat but expect the answer to be dog. मुझे करना क्या है? अब अगर एक कैट का इमेज अगर होगा तो वो कैट का इमेज यही इसी जगह में से कहीं से होगा। थोड़ी देर पहले ही बताया था डिस्ट्रीब्यूशन, कि हर चीज का एक डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये बेसिकली कैट का डिस्ट्रीब्यूशन एरिया है। तो मान लीजिए यहां से एक कैट इमेज हम लिए हैं
और हम चाहते हैं कि इस इमेज को वो डॉग बोले। कब डॉग बोलेगा वो इस इमेज को? अगर वो इस एरिया के बाहर आ जाए तो डॉग माना जाएगा। उस एरिया के बाहर वो कैसे जाएगा? देखिए, इस एरिया में जो है अल्टीमेटली देयर आर सर्टेन पिक्सेल्स इन द इमेज, और उस पिक्सेल के डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से ही ये एरिया बधा हुआ है। उस पिक्सेल में अगर थोड़ा चेंज कर दे, पिक्सेल का डिस्ट्रीब्यूशन अगर इस एरिया में आ जाए, तो है तो वो कैट का इमेज, लेकिन सिस्टम को लगेगा कि वो डॉग है। Got my idea? This is what is called as adversarial attacks. मशीन लर्निंग मॉडल्स पे अटैक कर रहे हैं हम। कैसे? अब इस चीज को कैसे हम डिस्ट्रीब्यूशन बदल सकते थे? तो एक तो होता है कि हम कुछ पिक्सेल्स को बदल दें। इवन देयर आर सिंगल पिक्सल अटैक्स आल्सो, बट मैं सिंगल पिक्सल छोड़ रहा हूँ। कुछ पिक्सेल्स को बदल दे, इतना बदले कि इमेज हम लोगों को देखने में अलग ना लगे, बट सिस्टम को वो अलग लगने लगे, डिस्ट्रीब्यूशन बदल जाए। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि एक छोटा सा एक पैच डिजाइन करें। मान लीजिए कि एक बायोमेट्रिक सिस्टम लगा, आपके गेट पे लग गया कि जो आया उसका बायोमेट्रिक फेशियल रिकॉग्निशन होगा। अभी मैंने एक चश्मा बनाया, इस पे एक छोटा सा पैच लगा दिया जो उस डिस्ट्रीब्यूशन को बदल देगा। तो मैं जैसे अगर चश्मा हटा के किया, मेरा फेस रिकॉग्नाइज किया, चश्मा लगाए, वो मेरे किसी क्लोज फ्रेंड का फेस बोला कि वो उसका फेस है। ड्यू टू दिस पैच, यहाँ पे एक छोटा सा पैच है जिसका कारण वो शिफ्ट होके दूसरे का डिस्ट्रीब्यूशन बन गया। राइट, एंड दिस इज वेरी मच रियलिटी। ऐसा नहीं है कि मैं जस्ट एक फिक्सिशियस सिनेरियो आपको बता रहा हूं, ये है, होता है। हाँ, एकदम कर लेगा। है? अरे आप बोलिएगा तो एक दूसरे जगह दूसरे किसी फीमेल कैंडिडेट का भी वो ये कर लेगा कि हाँ ये वो है, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूशन बदल देगा उसका, एक छोटा सा पैच यहाँ पे। अब आप ये देखिए, ये जानलेवा है। ये प्रॉब्लम जानलेवा किस लिए है कि इफ देयर इज एन ऑटोमेटेड कार रनिंग, रास्ते में बहुत सारे बोर्ड मिलते हैं, स्पीड लिमिट, स्टॉप, ये वो, कहीं स्टॉप साइन है, उसके ऊपर एक छोटा सा पैच लगा दिए, उस पैच के कारण वो स्टॉप साइन शिफ्ट होके स्पीड लिमिट 60 हो गया। तो लिखा हुआ स्टॉप साइन, ह्यूमन ड्राइवर देखेगा स्टॉप है, ऑटोमेटेड ड्राइवर देगा वो स्पीड लिमिट 60 निकलो। दिस हैज बीन ऑलरेडी टेस्टेड। लोगों ने बहुत सारे टेस्ट किए, इस तरह से बहुत सारे पैचेज मार्केट में अवेलेबल भी है। राइट, स्मॉल पैच, स्मॉल टी शर्ट पे, चश्मे पे आप कुछ लगा लीजिए, आपका बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन दूसरे के साथ चलेगा। तो दीज आर कॉल्ड, यहाँ पे जैसे 2 ही क्लास था, तो अगर 2 से ज्यादा है तो वी कॉल इट एज टारगेटेड अटैक्स, कि हम X से Y में जाएंगे, X से Z में जाएंगे, X से W में जाएंगे, किस क्लास में हम जाना चाहते हैं उसके लिए पैच बना सकते हैं छोटा छोटा। So all these issues are there or can be coming to that. तो अभी मशीन लर्निंग और ये चलता रहेगा, ऐसा नहीं है कि अब लोग आ गए बहुत सीख लिए। डेटा प्राइवेसी, एज आई टोल्ड, कि प्राइवेसी इज समथिंग विच इज वर्ल्ड वाइड कंसर्न। बहुत सारे कंपनी में आप देखिएगा कि आपको साल भर बाद या 6 महीने बाद वो लोग स्टार्ट करते हैं मेल करना कि आप अगर फिर से एक्टिव नहीं है तो आपकी डेटा डिलीट कर दी जाएगी, because of the Privacy Act rules. So in India we have also adopted a privacy rule, DPDP. हाँ? हाँ, कोई भी इस तरह का, एक तो देखिए जो डेटा प्रोटेक्शन रूल बोलता है कि अगर कोई डेटा आपको नहीं चाहिए you do not collect it, right? और आप परमानेंटली डेटा स्टोरेज नहीं कर सकते हैं। आपको अगर डेटा लगता है किसी का कि अब यूज में नहीं आया है, तो जैसे क्या होता था फिजिकल कॉपी में भी होता था ना, कि आप कहीं अप्लाई करते हैं बायोडाटा, मान लीजिए दिए, और फिजिकल कॉपी में आपने दिया, तो हर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता था, पेपर थ्रेशर होते थे जो पेपर को कट करके पूरा एकदम ये बना के फेंक देते थे, कि आपका जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन होता था ना उस बायोडाटा में, वो किसी के हाथ ना लगे। तो सिमिलरली व्हेनेवर यू आर अप्लाइंग और आपका डिजिटल डेटा पड़ा हुआ है,
So if it is not being used, it should be deleted after some time. So storage is not permanent. It has to be, if it is not active, इसको एक टाइम के बाद डिलीट करना है. डेटा कंट्री के बाहर नहीं जाएगा, राइट. सो इस तरह के सारे ये हैं. देन इवैल्यूएशन एंड बेंचमार्क कि हम किस तरह से इसका सेफ्टी ऑडिट कर सकते हैं, और हर चीज का ऑडिट होना चाहिए. मशीन लर्निंग मॉडल्स के भी ऑडिट होते हैं. ऑडिटिंग होता है ना, हम लोग अभी ऑडिटिंग मतलब नॉर्मली समझते हैं कि सिर्फ अकाउंट्स का ऑडिट होता है. तो ऑडिटिंग हर चीज का होता है. और वी ऑडिट द कोड्स. इनफैक्ट जो हम वेबसाइट्स देखते हैं ना, उनका भी ऑडिटिंग होता है. हर एक वेबसाइट का, हर एक सॉफ्टवेयर की ऑडिटिंग होती है कि वो सेफ है कि नहीं. उसी तरह से हर एक मशीन लर्निंग मॉडल्स की ऑडिटिंग की वेदर इट इज free from all those biases and privacy issues are not there, all those things. So we need to take care, we need to have a practice. अभी भी क्या है, जैसे देखिए कुछ चीजें आप ऐसे सोचिए, क्योंकि ये क्या है कि दिख नहीं रहा है, तो इसमें लोगों को अभी भी बहुत सारे लोग समझ ही नहीं पाते हैं. फिजिकली आप कोई भी एक सामान खरीदिए, कोई भी खाने पीने से लेके इस तरह का मोबाइल डिवाइस, कुछ भी, एक लेवल उस पर चिपका रहता है. मैन्युफैक्चरिंग डेट से लेके क्या कंपोजिशन है, कब तक वो ठीक रहेगा, कब तक उसकी बारे सारा चीज रहता है. किस कंपनी में बना है, किस जगह बना है, एवरी इंफॉर्मेशन यू गेट ऑन दैट लेवल. नो, लेकिन अभी हम लोग मशीन लर्निंग मॉडल्स में ऐसा नहीं करते हैं. बट ऑलरेडी देयर आर प्रपोजल्स कि हर मशीन लर्निंग मॉडल्स के साथ वैसा ही एक पैच होना चाहिए, एक लेवल होना चाहिए कि हु डेवलप्ड इट, when developed it, what are the safety conditions in this, what are the data sets in this, how that data set was converted, और ये किस काम के लिए है, किस काम के लिए नहीं है, वो भी लिखना पड़ेगा, राइट. उसी तरह से डेटा सेट में भी उसका भी एक लेवल होना चाहिए कि कहाँ से लिया गया, कब लिया गया, कौन एनोटेट किया, कितने लोग एनोटेट किए. So all this, so there are already proposals कि हम लोग इसको कैसे सेव करें. So still we need to go a long ahead before we can really formalize it कि जैसे अब हर प्रोडक्ट के साथ आता है सेफ्टी लेवल्स या लेवल्स प्रोडक्ट इंफॉर्मेशंस, वैसे ही हर AI मॉडल के साथ प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन आए, and so that we can audit it properly. So again, the guardrails, already I have told you what a guardrail is, and so that's where I will stop. एक चीज था और RAG tools जो मैं सोचा था कोड में मैं दिखाऊंगा. This is something which will be really useful to you. So you please, although I could not demonstrate you, but I will just ask those who are especially agricultural students, you should try this one. RAG क्या है कि as I told कि one thing is you can create a agent जो बाहर जाके डेटा लेके आए, but most of the time you do not even want कि outside. जैसे मान लीजिए कि सरकार की एक पॉलिसी है, मान लीजिए सरकार जैसे अभी ये देगा, एक इंश्योरेंस देगा या उसके कुछ फिनेंशियल बेनिफिट्स देगा, तो आप एक AI एनाबल्ड चैटबॉट बनाइए. उसके लिए आपको करंट बाहर जाने की सरकार की एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है. सो आप अगर उस पॉलिसी डॉक्यूमेंट को उस चैटबॉट को फीड कर दीजिए कि इसके बाहर नहीं देखना है, सिर्फ इसी पॉलिसी डॉक्यूमेंट से देख के आंसर देना है, क्योंकि बाहर से वो देख के आके क्या बोलेगा उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है. एंड दैट्स इट. नाउ अज्यूम इस तरह के केसेस में जहां कॉलेज या कोई एक लीगल डॉक्यूमेंट है कि जो भी आंसर्स होंगे वो इसी लीगल डॉक्यूमेंट से होंगे. एक हो सकता है, दो हो सकता है, चार हो सकता है, 10 तरह के डॉक्यूमेंट्स है. सो यू क्रिएट ऑल दोज डॉक्यूमेंट्स, पुट इट और अपलोड इट टू दैट LLM and ask the LLM कि you answer based on these contents only. So for that we use RAG framework called as Retrieval Augmented Generation. So what normally it does कि जो हम PDF या जो हमारा गाइडलाइन है, it creates and stores that in the database. Normally Chroma database use करता है मैक्सिमम लोग. So it stores in a Chroma database. And whenever you are writing any question,
The questions are compared against that, whatever is stored in the database, and then results are only given from that. So we are never going outside. एक तो सिस्टम के अंदर अपना नॉलेज है, लेकिन आपके आंसर्स कहाँ से दिए जा रहे हैं? सिर्फ उस पीडीएफ पेज से दिए जा रहे हैं, बिकॉज यू आर रिक्वायर्ड टू डू। देखिए, आपको लग सकता है सर पीडीएफ में भी तो सर्च कर सकते हैं, लेकिन वो एक वर्ड मिलेगा। लेकिन इफ यू वांट अ कंप्लीट क्वेश्चन, से यू आर अ फार्मर, उतने पढ़े लिखे नहीं है, अगर हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में, किसी भी लैंग्वेज में, तो आपको अगर क्वेश्चन टाइप किया या बोला है, उस क्वेश्चन को ले जाके आप उस पूरे पीडीएफ को सर्च किए, उस पीडीएफ के हिसाब से जो आंसर बना, सिर्फ सर्च नहीं किए, उस पूरे पीडीएफ के हिसाब से जहां जहां वो चीज है उस हिसाब से सर्च करके उसके हिसाब से एक आंसर बनाए उस क्वेश्चन का। लेकिन आंसर का बेसिस ये पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स है। देखिए, नेट से सर्च करके लाना और इसमें डिफरेंस है। नेट से सर्च करके लाए तो ये गारंटी नहीं दे सकते हैं कि ये सही है गलत है, लेकिन अगर यहां से ले रहे हैं तो इसकी गारंटी है कि दिस इज करेक्ट, क्योंकि हम एक ऑथेंटिक सोर्स से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। सो दोज फ्रेमवर्क्स आर कॉल्ड एज RAG फ्रेमवर्क्स। सो मोस्टली लोग अभी वही यूज करते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल, आई विल स्टॉप हियर। एनी फर्दर क्वेश्चन? Okay, so online participants, do you have any question? So thank you, sir, for the exciting lecture. In the first page, basically the basic foundation of AI, machine learning and deep learning and generative AI, and second phase, the demonstration as well as the future of generative AI in digital agronomy you have shown. So thank you on behalf of IIIT Bhagalpur, sir, and everyone online participants. After 5 to 10 minutes, we will start the valedictory session. So please be joined. Okay. Thank you, everyone. Thank you, sir.